afternoon, students. This is my first video of part B of chapter 1 of macroeconomics of class 12 CBSE economics, and name of this part is national income accounting. So in this part, which is national income accounting, we'll learn how to do the national income accounting or how to estimate the national income. And in this video, which is the first video in this series, I'm going to make you understand some basic concepts which are required to be known by you if you want to estimate the national income of any country. So first of all, in this video, we'll try to understand the differences between factor income and non-factor income, which is also known as transfer payment. Non-factor income is known as transfer payment also. The second name of non-factor income is transfer payment. So firstly, we'll try to understand the meaning of factor income. It refers to the amount of money received while working as a factor of production. जब हम एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं और उस काम के बदले जो भी अमाउंट ऑफ मनी हमको रिसीव होता है, दैट इज़ नोन एज फैक्टर इनकम. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में हम किस तरह से काम करते हैं? इफ़ वी आर वर्किंग एज लैंड प्रोवाइडर, or if we are working as laborer or as capital provider or as technology provider or as entrepreneur, it means we are working as factor of production. And if we are working like this, like these factors of production, will be paid rent if we are providing land, if we are providing our labor as a worker, if we are working or as a laborer, we will be paid wage and salary. If we are working as capital provider, we will be paid interest. If we are working as entrepreneur, we'll get profit. If we are providing our technology in the process of production, we will be paid royalty. So if we are earning some amount of money either in the form of rent or wage and salary or interest or profit or royalty, it means these amounts of money are the factor incomes. It means we are earning the factor incomes. So factor incomes के examples क्या क्या हो गए? Rent, wage, salary, interest, profit, royalty, as well as pension after retirement. जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको सम अमाउंट ऑफ मनी मंथली दिया जाता है, विच इज़ नोन एज पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. और ये भी एक तरह का फैक्टर इनकम ही होता है क्योंकि ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बिफोर रिटायरमेंट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न कर रहे थे. तो और ये जो पेंशन होता है, पेंशन फंड से उनको प्रोवाइड करा जाता है. एंड पेंशन फंड जनरेट किया जाता है फ्रॉम द वेजेज एंड सैलरीज. जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वेजेज और सैलरीज, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टर इनकम्स. यदि किसी की सैलरी है 20,000 रुपीज़ और 10% रुपीज़ ऑफ दैट अमाउंट ऑफ मनी इज़ डिडक्टेड फॉर द पेंशन फंड टू जनरेट द पेंशन फंड, तो मंथली 20,000 रुपीज़ में से 10% रुपीज़ उसका डिडक्ट कर दिया जाएगा. 10% अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा, विच विल बी 2,000 रुपीज़. तो 18,000 उसको सैलरी मिलेगी और 2,000 रुपीज़ उसके पेंशन फंड में डिपॉजिट किया जाएगा. और इसी पेंशन फंड से आफ्टर रिटायरमेंट दैट पर्सन विल बी पेड पेंशन. तो पेंशन जो दिया जाता है पेंशन फंड से दिया जाता है. एंड पेंशन फंड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ वेज एंड सैलरी, विच इज़ द फैक्टर इनकम. सो वेज एंड सैलरी से पेंशन, वेज एंड सैलरी फैक्टर इनकम. सो पेंशन फंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ फैक्टर इनकम. उससे जो पेंशन दी जाती है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर इनकम. सो फैक्टर इनकम्स के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. These are the examples of factor incomes. Now what is non-factor income? Non-factor income means the amount of money which is received without working as a factor of production. जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम नहीं करते हैं, मीन्स नाइदर वी वर्क एज लैंड प्रोवाइडर और कैपिटल प्रोवाइडर, नॉर वी वर्क एज entrepreneur, nor as laborer or worker, nor as fuel supplier, nor as raw material supplier, and even we get some amount of money. So that amount of money which we are receiving without working as factor of production is known as non-factor income. For example, gift. बिना कुछ काम किए हमको गिफ्ट मिल जाता है. जैसे हमारा घर पे कोई फंक्शन है या बर्थडे है तो हमको हमारे फ्रेंड्स आके गिफ्ट देते हैं. डोनेशन का मतलब होता है चंदा. यदि कोई इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हैं और उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी ने डोनेट कर दिया. ओल्ड एज पेंशन, जो भी 60+ के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, ओल्ड एज पर्सनस, एंड देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर दीज इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज ओल्ड एज पेंशन. तो इनको भी जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है
वो कोई काम नहीं करते हैं फिर भी उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, नॉन फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन एंड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट आर द टू डिफरेंट थिंग्स। Pension after retirement, a person was working, now he is retired and he is being paid a certain amount of money. Old age pension, the person was not working and he's uh, that person is an old aged person and there is no one to look after that person. That is why government of India is giving some amount of money to that person, so that person is being paid a certain amount of money though he is not working at present and neither he worked in past also. Even that person is getting some amount of money. So old age pension is the example of non-factor income. And scholarship, there are many individuals who are given a scholarship on the basis of their social status as well as on the basis of their academic performance. तो academic performance या social status के basis पे कुछ individuals को certain amount of money government देती रहती है। तो ये लोग कुछ काम नहीं करते, इनका social status एक particular होता है या ये academics में बहुत अच्छा करते हैं इसलिए उनको certain amount of money दिया जाता है। तो ये भी नॉन फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, अब और कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम में। इट इज़ अर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फैक्टर इनकम कहाँ से रिसीव होती है, जब लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम करते हैं मीन्स व्हेन दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे इनको इनकम जनरेट होती है। जब हम एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं मीन्स एज अ लेबरर, लैंड प्रोवाइडर या कैपिटल प्रोवाइडर और एंटरप्रेन्योर, मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और इस प्रोडक्शन के कारण वी आर बीइंग पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, प्रॉफिट, रॉयल्टी or salary, etc. So that will be known as factor income. And non-factor income are paid from फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम से ही नॉन फैक्टर इनकम पे करा जाता है। जैसे नॉन फैक्टर इनकम का एग्जांपल हो गया गिफ्ट। जैसे मुझे सैलरी मिली 20,000 रुपीज़, सपोज मुझे सैलरी मिलती है, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फैक्टर इनकम। अब एक मेरा फ्रेंड है, उसका बर्थडे पड़ा तो उसको सपोज़ मैं 1,000 रुपीज़ गिफ्ट के फॉर्म में दे देता हूँ। तो ये 1,000 रुपीज़ जो मैं अपने फ्रेंड को दे रहा हूँ, उस फ्रेंड के लिए ये क्या हो गई, नॉन फैक्टर इनकम, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन ही इज़ गेटिंग 1,000 रुपीज़। ये 1,000 अर्न करने के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम नहीं किया। तो ये 1,000 रुपीज़ मैंने कहाँ से दिया, जो मेरे पास फैक्टर इनकम थी उससे दिया। तो जो भी गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप्स इंडिविजुअल्स को दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, फैक्टर इनकम से। दूसरा एग्जांपल, सपोज एक दूसरा इंडिविजुअल है जो कि ओनर है वह प्रोडक्शन यूनिट का और उसको प्रॉफिट होता है सपोज 2,000 रुपीज़ का और उसमें से 100 रुपीज़ वो किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देता है। तो ये इंस्टीट्यूशन को 100 रुपीज़ जो डोनेशन किया गया है इंस्टीट्यूशन के लिए नॉन फैक्टर इनकम हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम नहीं किया। इवन दैट इंस्टीट्यूशन इज अर्निंग दिस 100 रुपीज़, रिसीविंग दिस 100 रुपीज़। तो दिस 100 रुपीज़ इज बिंग पेड टू दिस इंस्टीट्यूशन वेयर फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज़ विच इज़ अ प्रॉफिट विच इज़ अ फैक्टर इनकम। तो जो भी नॉन फैक्टर इनकम्स होते हैं वो कहाँ से पी के जाते हैं, फैक्टर इनकम से पी के जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना, पॉइंट ज़रूरी है, उसी पॉइंट के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि फैक्टर इनकम इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, non-factor incomes are not included in national income. Only factor incomes are included, non-factor incomes are not included in national income. यदि नॉन फैक्टर इनकम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे, सपोज मुझे सैलरी मिलती है, आई एम गेटिंग अ सैलरी ऑफ सपोज 5,000 रुपीज़ कि मुझे सैलरी मिली, तो ये सैलरी किसका एग्जाम्पल होगी, फैक्टर इनकम। दिस इज़ फैक्टर इनकम फॉर मी। नाउ सपोज़ मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, इस सैलरी में से मैंने अपने फ्रेंड को सपोज़ 1,000 रुपीज़ गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया। ये मैंने क्या दिया, गिफ्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। फ्रेंड का नाम है ए, ठीक है। तो अब ए इंडिविजुअल के पास जो मेरा फ्रेंड है कितना आ गया, 1,000 रुपीज़। ये 1,000 रुपीज़ क्या हो गया, नॉन फैक्टर इनकम। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में केवल 5,000 रुपीज़ ही इंक्लूड किया जाएगा। ये ए इंडिविजुअल ने जो मुझसे 1,000 रुपीज़ रिसीव किया वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपीज़ को इंक्लूड कर लेंगे तो नेशनल इनकम का सही पिक्चर नहीं मिलेगा। वो नेशनल इनकम जितनी होगी उससे ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। कैसे, माई इनकम 5,000 रुपीज़ ये तो इंक्लूड हो ही गई क्योंकि ये फैक्टर इनकम है। ये 1,000 रुपीज़ नॉन फैक्टर इनकम के रूप में भी यदि इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल नेशनल इनकम दिखेगी कितनी, 6,000। बट एक्चुअली इनकम है कितनी, ए इंडिविजुअल के पास कितना है, 1,000 रुपीज़। मेरे पास 5,000 था, इसमें से 1,000 मैंने से ए इंडिविजुअल को दे दिया है। तो अब मेरे पास कितना बचा है टोटल, मेरे पास केवल 4,000 ही बचा है। सो आई एम हैविंग नाउ
₹4,000। सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना इकॉनमी में है इस सैलरी के कारण, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना इकॉनमी में है, 4,000 मेरे पास, 1,000 मेरे फ्रेंड के पास, टोटल अमाउंट कितना है 5,000। तो इनकम एक्चुअली है कितनी 5,000, दिखेगी कितनी 6,000। बिकॉज नाउ जब हम इस नॉन फैक्टर इनकम 1,000 रुपीज़ की है, इसको भी इंक्लूड कर ले रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, तो 1,000 रुपीज़ इज़ काउंटेड ट्वाइस, वंस इन दिस 5,000 रुपीज़। ये 5,000 रुपीज़ में तो ऑलरेडी ये जो है इसमें 1,000 रुपीज़ इंक्लूडेड है, क्योंकि इसी में से निकाल के मैंने 1,000 रुपीज़ इसको दिया है। तो ये 1,000 रुपीज़ एक बार सेपरेटली इंक्लूड हो जा रहा है एज द इनकम ऑफ माई फ्रेंड ए विच इज़ गिफ्ट, और 5,000 रुपीज़ मेरी सैलरी जो है इसमें भी 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 1,000 रुपीज़ की हो जा रही है डबल काउंटिंग, इसीलिए नेशनल इनकम दिख रही है ज़्यादा। इट इज़ एक्चुअली 5,000 बट इट इज़ coming out as 6,000 rupees when we are including non-factor income also। तो non-factor incomes अभी मैंने बताया, non-factor incomes are received from factor incomes, ये factor income से ही रिसीव करी जाती हैं। मतलब factor incomes में non-factor incomes ऑलरेडी क्या रहती हैं, इंक्लूडेड रहती हैं। फैक्टर इनकम से ही नॉन फैक्टर इनकम जाती है। जैसे किसी के पास 100 रुपये की फैक्टर इनकम है, वेज किसी को मिला 100 रुपया, इसमें से उस इंडिविजुअल ने 10 रुपीज़ किसी को डोनेशन दे दिया, डोनेशन। ओके, तो नेशनल इनकम में ये हो गया फैक्टर इनकम और ये हो गया नॉन फैक्टर इनकम। तो यही कहता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कि ओनली फैक्टर इनकम शुड बी इंक्लूडेड, ओनली 100 रुपीज़ इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि ये 10 रुपीज़ भी इंक्लूड कर देंगे तो टोटल नेशनल इनकम दिखेगी कितनी 110, बट एक्चुअली नेशनल इनकम है कितनी 10 रुपीज़। ये डोनेशन के फॉर्म में चला गया है और इस इंडिविजुअल को मिला था 100, इसमें से 10 दे दिया डोनेशन, तो इस इंडिविजुअल के पास बचा कितना 90 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी बच इकॉनमी में है कितनी 100, दी कितनी रही है 110, बिकॉज 10 की डबल काउंटिंग हो गई है, 10 की एक सेपरेट काउंटिंग हो जा रही है इन फॉर्म ऑफ डोनेशन एंड 10 रुपीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन दिस 100 रुपीज़। ये जो 100 रुपीज़ की भी हम काउंटिंग कर ले रहे हैं फैक्टर इनकम के फॉर्म में, ये 10 रुपीज़ इसी से जनरेट हुआ है, तो 10 रुपीज़ इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 100 रुपीज़। तो एक बार यहाँ काउंट हो जा रहा है और एक बार सेपरेटली काउंट हो जा रहा है, तो इसकी डबल काउंटिंग हो जा रही है। The non-factor incomes are not included. So you have to remember in this chapter national income accounting that wherever anything is given as factor income, that will be added to national income. If anything is given as non-factor income, will not be included in national income. Is this clear? Okay. Now we'll study the golden rules of national income accounting. These गोल्डन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये गोल्डन रूल्स ऐसे रूल्स हैं जिसको मैंने डेवलप करा है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। दीज आर माई ओन रूल्स। और ये गोल्डन रूल्स, आप 4 गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल नंबर 1, 2, 3, 4। इफ़ यू नो ऑल दीज 4 गोल्डन रूल्स देन ओनली यू कैन डिराइव द वेरियस फॉर्मूले विच विल बी यूज्ड फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए अलग अलग फार्मूले हमको यूज़ करने पड़ेंगे, अलग अलग मेथड्स के अलग अलग फार्मूले, और उन फार्मूलों को आप तभी डिराइव कर पाएंगे, उन फार्मूलों को तभी आप लिख पाएंगे, तभी डेवलप कर पाएंगे यदि आप गोल्डन रूल्स जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस गोल्डन रूल्स आर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला गोल्डन रूल होता है जो बताता है कि हाउ टू फाइंड आउट मार्केट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, या किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। कोई प्रोडक्ट है एक्स, इसका प्रोडक्शन हुआ है और इसका मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट प्राइस का मतलब प्राइस, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो इस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस हमको सपोज डिटरमाइन करना है, ओके, और इस प्रोडक्ट की 1 यूनिट के प्रोडक्शन की कॉस्ट 10 रुपीज़ आती है। 10 रुपीज़, सपोज 10 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ दिस आउटपुट। एक्स के 1 यूनिट के प्रोडक्शन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। व्हाट डज इट मीन, मतलब 10 रुपीज़ एक्स के प्रोड्यूसर ने खर्च किया है एक्स के 1 यूनिट के प्रोडक्शन पे। तो प्रोडक्शन पे खर्च करने का मतलब क्या हो गया, मतलब ऑन hiring and purchasing of various factors of production which have been used in production of 1 unit of X, this person has, who is the owner of this production unit in which X is being produced, this person has spent how much amount of money, 10 rupees. 10 rupees is cost of production of 1 unit of X, मतलब 10 rupees X के प्रोड्यूसर ने X के प्रोडक्शन पे 10 रुपीज़ खर्च किया है। इसका मतलब ये है कि X के प्रोड्यूसर ने एक्स के प्रोडक्शन में जिन भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज़ किया है और हायर किया है उनको कितना उसने पेमेंट करा है,
₹10 पेमेंट करा है, तो ये ₹10 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम। मतलब ₹10 इसने पेमेंट किया है इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी एक्सेट्रा टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स टू लैंड प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, लेबरर्स, इनको ₹10 उसने खर्च कराए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हो गया ये फैक्टर इनकम। लेकिन इस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, ये फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ₹10 क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट इसको बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए फैक्टर कॉस्ट है, और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए फैक्टर इनकम है। ठीक वैसे ही जैसे सपोज़ एक लेबरर को मैं अपने घर पे लाता हूँ, दिन भर काम कराता हूँ और उसको वेज देता हूँ ₹500। सो दिस ₹500 इज़ कॉस्ट ऑफ हायरिंग दैट लेबरर। उस लेबरर को हायर करने की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹500। तो मेरे लिए क्या हो गई, वो उसको लेबरर के रूप में मैंने हायर करा, मतलब एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करा, तो मेरे लिए वो ₹500 क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट। और उस लेबरर की इनकम हो गई, और किस फॉर्म में इनकम अर्न हो रही है, फैक्टर के फॉर्म में इनकम अर्न हो रही है, तो वो उसके लिए क्या हो गई, फैक्टर इनकम। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर इनकम होती है, प्रोड्यूसर्स के लिए वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो फैक्टर कॉस्ट ₹10 हो गई। अब दूसरी बात, जब मैं आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ा रहा था उस टाइम पे आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करे जाते हैं। और सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ₹2 का GST इम्पोज कर दिया इस प्रोडक्ट की सेलिंग पे, ₹2 का GST, एंड GST इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एज वी नो दैट। तो ये प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है, इसमें ₹2 क्या करेगा, ये इंक्लूड कर लेगा। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गिविंग द सब्सिडी ऑफ ₹1। सब्सिडी, यदि कोई प्रोडक्ट जैसे ये प्रोडक्ट का प्राइस अब कितना हो गया, ₹10 कॉस्ट ऑफ हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ₹2 GST, तो ये कितने में बेचेगा इसको, ₹12 में। बट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ₹1 की सब्सिडी दी, तो जितने की सब्सिडी प्राइस उतने से डिक्रीज हो जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट ₹50 का है, इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द सब्सिडी ऑफ ₹1, देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट विल डिक्रीज बाई ₹1 एंड इट विल बिकम ₹49। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ₹1 की सब्सिडी दे दी, तो माइनस हो जाएगा 1, ये 1 क्या हो गया, सब्सिडी। इज दिस क्लियर। तो अब इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 + 2 - 1, तो 10 + 2 12 - 1 11, इसका प्राइस हो गया 11। तो मार्केट प्राइस कैसे हमने निकाला, फैक्टर कॉस्ट ₹10 है प्लस ₹2 GST विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में हम जोड़ देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें से सब्सिडी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमको फार्मूला मिल जाता है मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में FC, इनडायरेक्ट टैक्स, शॉर्ट में IT, और माइनस करते हैं सब्सिडी, शॉर्ट में S। तो इस फार्मूलों को यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, ये फर्स्ट वाला गोल्डन रूल, यदि शॉर्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा मार्केट प्राइस MP इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इस चैप्टर में कैपिटल S का मतलब होगा सब्सिडी, कैपिटल IT का मतलब होगा इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल FC का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट, कैपिटल MP का मतलब होगा मार्केट प्राइस। You have to remember these things. This is the first golden rule. Market price equals to factor cost plus indirect tax plus subsidy. Second golden rule is national equals to domestic plus NFIA. National equals to domestic plus NFIA. पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। नेशनल मीन्स नेशनल ऑफ एनी वेरिएबल विच इज़ यूज्ड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इक्वल्स टू डोमेस्टिक ऑफ दैट वेरिएबल प्लस NFIA। NFIA क्या होता है अभी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस यहीं पे रहेगा कि नेशनल का और डोमेस्टिक का रिलेशन क्या है। यहाँ पे नेशनल का मतलब केवल नेशनल अकेला नहीं रहेगा, नेशनल के साथ कोई वेरिएबल आएगा, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस NFIA, या नेशनल प्रोडक्शन इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस NFIA, या नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। मीन्स नेशनल ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल्स टू डोमेस्टिक ऑफ दैट वेरिएबल प्लस NFIA। किसी भी वेरिएबल का नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक ऑफ दैट वेरिएबल और उसमें NFIA ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नेशनल की वैल्यू कितनी है। जैसे डोमेस्टिक इनकम दिया गया, सपोज NFIA 20 है एंड डोमेस्टिक इनकम इज़ 100, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। क्योंकि अभी मैंने रिलेशन क्या बताया,
नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। और किस वेरिएबल का नेशनल? इनकम का वेरिएबल। इनकम वेरिएबल का नेशनल मीन्स नेशनल इनकम इक्वल्स टू इनकम वेरिएबल का डोमेस्टिक, दैट इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ऐसे ही नेशनल प्रोडक्शन इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस NFIA। नेशनल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस NFIA। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब NFIA का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है N स्टैंड्स फॉर नेट, F स्टैंड्स फॉर फैक्टर, I स्टैंड्स फॉर इनकम एंड A स्टैंड्स फॉर फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब NFIA की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? NFIA का जो फार्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये फार्मूला होता है NFIA का। NFIA इक्वल्स टू factor income from abroad minus factor income to abroad. Now you may ask a question that what is factor income from abroad and what is factor income to abroad? इस चैप्टर में, इससे पहले कि मैं ये आगे इसको एक्सप्लेन करूँ, इस चैप्टर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्सप्लेनेशन जो मैं करूँगा तो इंडिया को डोमेस्टिक कंट्री मानूंगा और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को अब्रॉड मानूंगा। मतलब इंडिया विल बी द डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी अब्रॉड। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा जब भी डोमेस्टिक कंट्री की बात करूंगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया? देयर आर सो मेनी इंडियंस हु आर वर्किंग in foreign countries as factor of production, means there are many Indians who are working in foreign countries where they are providing working as land provider, capital provider, entrepreneur, or as a worker, means as a laborer, or technology provider, and they are earning rent, wage, interest, profit, royalty, factor incomes in foreign countries. And the factor incomes which they earn from foreign countries, that factor income they are sending to India from abroad. तो इसको बोलते हैं factor income from abroad, means those factor incomes which are sent by those Indians who are working in foreign countries to India from abroad, means ऐसे factor incomes जो Indians foreign countries में earn कर रहे हैं और उसको foreign countries से India भेज रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं factor incomes received, इसमें hidden है from abroad। ऐसा factor income जो हम receive कर रहे हैं from abroad, foreign country से हम receive कर रहे हैं। कौन सी? जो Indians अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम। इसीलिए इसके साथ कोई साइन नहीं लगा है, कोई साइन नहीं लगा है, मतलब प्लस साइन ही हमारे कंट्री में आ रहा है, इसीलिए हमारे कंट्री में ऐड हो रहा है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एट द सेम टाइम देर आर मेनी फॉरेनर्स हु आर वर्किंग इन इंडिया and they are earning the factor incomes, rent, wage, interest, profit, royalty, and this amount of money that is factor income which foreigners are earning in India, they are sending this amount of money from India to abroad. So this amount of money is going to abroad, so it is known as factor income to abroad. और इसीलिए इसके साथ साइन कौन सा लगा? माइनस का साइन लगा, बिकॉज दिस फैक्टर इनकम इज गोइंग टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री से जो हमको फैक्टर इनकम इंडियंस भेज रहे हैं और हमारे कंट्री में आ रहा है तो प्लस हो गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मीन्स फैक्टर इनकम जो फॉरेनर्स इंडिया में अर्न करके फॉरेन कंट्रीज़ को भेज रहे हैं, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसीलिए इसके साथ माइनस साइन लग गया। ओके, सपोज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ 100 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज़ 80। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? 100 माइनस 80 इक्वल्स टू प्लस 20। मतलब नेट 20 रुपीज़ इज़ कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड in form of factor income. Is this clear? Now suppose formula हम चेंज कर देते हैं और हम निकालना चाहते हैं नॉट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम निकालना चाहते हैं फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना चाहते हैं। जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना चाहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे निकाल रहे थे, तो फॉर्मूला क्या था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है? 80, और माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 100। तो 80 माइनस 100, तो अभी कितना हो जाएगा? -20। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड +20 है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -20 है। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है 2020, लेकिन साइंस क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है बट इनके साइंस होते हैं अपोजिट। फॉर एग्जांपल, यदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा -20, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाएगा, +20। या दूसरा एग्जांपल, सपोज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज़ 30 तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ -30। सपोज है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -40 तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, साइन ऑपोजिट। ओके, अब दूसरी बात ये कि जो फार्मूला हमारा गोल्डन रूल है उसमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यूज़ नहीं होगा, हमेशा यूज़ करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सपोज क्वेश्चन में दिया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज़ -30 तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम क्या यूज़ कर लेंगे, 30 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इस तरह से यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब देखिए, NFIA का फुल फॉर्म फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा रहेगा। यदि शॉर्ट में NFIA लिखा गया है इट मीन्स इट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यदि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन में देना होगा एग्जामिनर को तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं देगा, वो हमेशा फुल फॉर्म में दिया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ऑलवेज गिवन एज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट मे बी गिवन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इट मे बी गिवन एट एज इट्स शॉर्ट फॉर्म। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा NFIA। तो NFIA यदि दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म हमेशा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो ये फर्स्ट गोल्डन रूल, दिस इज सेकंड गोल्डन रूल, और ये सेकंड गोल्डन रूल का पार्ट हो गया। थर्ड गोल्डन रूल इज दिस, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, किसी भी वेरिएबल की नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उस प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन करा था। तो नेट का मतलब क्या होगा, नेट ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल्स टू ग्रॉस ऑफ दैट वेरिएबल माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे नेट प्रोडक्शन इक्वल्स टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन, या नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, या नेट इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। नेट ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल्स टू ग्रॉस ऑफ दैट वेरिएबल माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में किसी भी वेरिएबल की नेट वैल्यू निकालनी है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए तो नेट वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन जो चौथा रूल है इसका एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन इसका होता है, एक टर्म आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हर वेरिएबल के केस में, इन केस ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल, नेट ऑफ दैट वेरिएबल इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ये नहीं होगा कि ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, बस ये याद रखिएगा। अदरवाइज नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इनकम ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपेंडिचर ग्रॉस एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इनकम ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स डजंट इक्वल टू ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला नहीं होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आपको इतने गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यू हैव टू मग अप दीज 4 फार्मूले। इन 4 फार्मूलों को आपको एकदम से याद कर लेना होगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद GDP। GDP ये टर्म से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्यों मैं GDP से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि GDP इज़ अ काइंड ऑफ टर्म विच वी हैव बिन स्टडिंग सिंस क्लास 9। क्लास 9 से आप GDP के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी GDP हम लोगों ने पढ़ा। सो वी नो the meaning and definition of GDP. That is why I am starting with GDP. Second thing, why I am starting with GDP, because in the previous chapter, that was basic concepts of macroeconomics, I told you that I told you that production equals to income. I told you in that chapter. It means total income equals to total production, and total income means national income, and total production means GDP.
What I am telling that in previous chapter I told you that with example that production equals to income. यदि 5000 की गुड्स एंड सर्विसेज का किसी प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन यूनिट के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम कितनी होगी 5000. जितने का प्रोडक्शन उतने की इनकम. तो इनकम इक्वल्स टू प्रोडक्शन. सो टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन. टोटल इनकम मीन्स नेशनल इनकम. टोटल प्रोडक्शन मीन्स जीडीपी. It means national income depends on GDP, and in this chapter we are going to learn how to estimate national income. So we have to study about national income. National income means total income. Total income means total production. Total production means GDP. So ultimately we can say that national income depends on GDP. That is why I am going to start with GDP. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जीडीपी बताता हूँ. जीडीपी एमपी यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एट मार्केट प्राइस अभी मैं छोड़ देता हूँ, केवल आपको जीडीपी के बारे में बताता हूँ. जैसा कि क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या क्लास 9 में या 10th में कई बार आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ जीडीपी. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में मीन्स अकाउंटिंग ईयर मतलब ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ये जो अकाउंटिंग ईयर होता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री के हुआ है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है, उन सब की वैल्यूज़ को हम जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा जीडीपी. इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस, क्योंकि इसमें हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है सबकी मार्केट वैल्यू को हम एक साथ ले रहे हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हो गया ग्रॉस. गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इसीलिए इसको बोलते हैं डोमेस्टिक. और गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया प्रोडक्ट. और कितने टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, अकाउंटिंग ईयर. So it is the sum total of market values of all goods and services produced within the domestic territory of a country during the time period of 1 accounting year. इसको बोलते हैं जीडीपी. अब इसको जीडीपी एमपी यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम जीडीपी को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया मार्केट प्राइसेस. तो यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट प्राइसेस को जोड़ रहे हैं which have been produced within the domestic territory of the country. Since we are getting this GDP by adding the market values of all goods and services, means market prices of all goods and services, that is why this GDP is known as GDP at market price, means GDP estimated on the basis of market price. इसीलिए इसको बोलते हैं GDP MP. तो GDP MP का डेफिनेशन क्या हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एंड सपोज जीडीपी एमपी किसी भी कंट्री में आता है ₹500 करोड़, मतलब ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री दैट इज ऑफ 500 करोड़ रुपीज़. मार्केट वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज जो कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री के प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आती है, 500 करोड़ रुपीज़. अब इसको मार्केट में बेचा जाएगा और 500 करोड़ रुपीज़ विल बी पेड बाय द कंज्यूमर्स. और कंज्यूमर्स पेमेंट किसको करेंगे, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर्स सेल कर रहे हैं. तो दिस 500 करोड़ रुपीज़ विल बी रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स. अब ये प्रोड्यूसर्स 500 करोड़ रुपीज़ रिसीव कर लेंगे और ये जीडीपी हो जाएगा 500 करोड़ रुपीज़ का. अब ये 500 करोड़ रुपीज़ जब प्रोड्यूसर्स रिसीव करेंगे तो ये प्रोड्यूसर्स विल नॉट कीप दिस अमाउंट ऑफ मनी विद देमसेल्व्स, because the goods and services which have been sold and from selling of which this amount of money has been received by the producers, those goods and services have not been produced by these producers themselves, but they have used various factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने यूज़ करा है, इसीलिए 500 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड प्रोवाइडर को दे दिया जाएगा रेंट, कैपिटल प्रोवाइडर को दे दिया जाएगा इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को रॉयल्टी, और जो भी वर्कर्स हैं उनको वेजेस एंड सैलरी इनको दे दिया जाएगा. और प्रोड्यूसर अपने लिए कुछ प्रॉफिट भी रख लेगा, जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपने लिए प्रॉफिट रख लेगा. अब इस 500 करोड़ रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेज एंड सैलरी, प्रॉफिट। इसके अलावा एक पार्ट इसका यूज़ किया जाएगा किस में, ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग ईयर, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 500 रुपीज़ हैव बिन प्रोड्यूस्ड, मशीन्स वुड हैव बिन यूज्ड, मशीन्स को यूज़ किया गया होगा और उसके कारण मशीन्स में नॉर्मल वेयर एंड टीयर हुआ होगा, उसके कारण मशीन्स की वैल्यू में रिडक्शन हुआ होगा, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी करा है। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली होता क्या है, डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर। जितने की वियर एंड टीयर होता है किसी भी मशीन में, मशीन को यूज़ करते हैं तो जितने की खराबी आती है उतने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सपोज इस टाइम में डेप्रिसिएशन 5 करोड़ का हुआ है, मशीन्स में 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब जो भी मशीन्स यूज़ करी गई हैं प्रोडक्शन यूनिट्स में, उनमें खराबी 5 करोड़ की आई है, मतलब 5 करोड़ की मेंटेनेंस कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इन मशीन्स की वियर टीयर को रिमूव करने के लिए 5 करोड़ रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। और वियर एंड टीयर कितने का हुआ है, 5 करोड़ रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि मशीन्स की वैल्यू 5 करोड़ से कम हो गई है। जितने का वियर एंड टीयर उतने का डेप्रिसिएशन, या जितने का वियर एंड टीयर उतने की मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई जितने की टूट फूट होगी उतने से मशीन की वैल्यू कम होगी। तो मशीन की वैल्यू 5 करोड़ रुपीज़ से कम हो गई है इन मशीन्स की, जिनको यूज़ किया गया गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। मतलब मशीन्स में टूट फूट कितने की हुई है, 5 करोड़ की। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी चली जाएगी, 5 करोड़ रुपीज़। सो दिस 500 रुपीज़ will be distributed among various factors of production or will be used for the payment in form of rent, interest, royalty, wage, salary, profit, as well as one part of this will be used in form of maintenance of those machines which have got some wear and tear, which will be known as depreciation. तो इसका मतलब ये है कि हम रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेज, सैलरी, प्रॉफिट जो कि लोगों ने अर्न किया है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यदि इसको ऐड कर दें और उसमें इंक्लूड कर दें डेप्रिसिएशन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 500 करोड़ के। क्योंकि ये 500 करोड़ रुपीज़ इसी में खर्च हुआ है। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, वेज एंड सैलरी, प्रॉफिट किसको देने पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हु हैव वर्कड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और एक पार्ट इसका खर्च हुआ है ऑन डेप्रिसिएशन। तो यदि हम ऐड कर दे रहे हैं वेरियस फैक्टर इनकम्स अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और उसमें डेप्रिसिएशन, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, 500 करोड़ के। और ये 500 करोड़ किसके बराबर हो गया, जीडीपी के। तो इस तरह से जीडीपी निकालने के लिए चाहे तो हम मार्केट वैल्यू ऐड करें, या हम ऐड करें ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो भी हमको क्या मिल जा रहा है, जीडीपी। लेकिन ये वाला जीडीपी किस बेसिस पे मिल रहा है, जब हम फैक्टर इनकम्स को ऐड कर रहे हैं। और फैक्टर इनकम्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर इनकम है, और फॉर द प्रोड्यूसर्स इट इज़ फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए इस तरह के जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी कितना था, 500। जीडीपी एफसी भी कितना आ जाएगा, 500। ये 500 कैसे आएगा, यदि गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को ऐड करेंगे। और ये 500 कैसे आएगा, यदि गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू 500 की है, इसको बेचा गया 500, प्रोड्यूसर्स रिसीव करेंगे, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पे कर देंगे, और एक पार्ट पे करेंगे डेप्रिसिएशन में। मतलब फैक्टर इनकम्स और डेप्रिसिएशन, इस सबको हम एक साथ ऐड कर दें तो भी किसके बराबर हो जाएगा, 500। मतलब ये 500 क्या है, जीडीपी है। लेकिन ये वाला जीडीपी हमको कैसे मिला है, जब हम ऐड कर रहे हैं फैक्टर इनकम विच इज़ इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट हम सारे बात प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए फैक्टर इनकम को हम बोल देते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से ये वाला जीडीपी जो हमने निकाला, इसमें भी सेम अमाउंट आया जैसे ये जीडीपी आया था 500 करोड़। लेकिन ये वाला जीडीपी कैसे आया था, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर इनकम्स। जब हम फैक्टर इनकम्स को ऐड करें, जिसको प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, इसीलिए इस वाले जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये आया कैसे, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। सारे फैक्टर इनकम्स को हमने जोड़ दिया, अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसे सारे फैक्टर इनकम्स जिनकी अर्निंग कहाँ हुई है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम इसको क्यों बोलते हैं ग्रॉस, क्योंकि हम इसमें टोटल फैक्टर इनकम ऐड कर रहे हैं। और इसको डोमेस्टिक क्यों बोलते हैं, डोमेस्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर ये फैक्टर इनकम्स अर्न हुए हैं। और प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फैक्टर इनकम्स प्रोडक्शन से ही अर्न हुए हैं। और एट फैक्टर कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जीडीपी को निकालने के लिए हमने फैक्टर इनकम्स को अर्न करा है। और इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब जीडीपी हमको एग्जैक्टली मिलेगा यदि हम मार्केट वैल्यू को ऐड करें,
या फैक्टर इनकम्स और उसमें ऐड कर दें डेप्रिसिएशन, तो भी ये किसके बराबर होगा, जीडीपी। लेकिन ये वाला जीडीपी निकालने के लिए वी आर एडिंग फैक्टर इनकम्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स earned within domestic territory of a country including depreciation during an accounting year. ओके, अब अभी मैंने बताया था कि यदि आप को निकालना हो नेट किसी भी वेरिएबल का, जैसे यहाँ पे जीडीपी एफसी दिया है और हमको निकालना हो एनडीपीएफसी, मतलब ये ग्रॉस की जगह पे नेट निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस जीडीपीएफसी और इसमें से हटा क्या दीजिए, डेप्रिसिएशन। मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने इंक्लूड किया है, यदि डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दे तो ये ग्रॉस क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा, और ये टर्म क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेक्स्ट हमको यही पढ़ना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ ग्रॉस आया है, यहाँ नेट आया है। तो नेट कैसे मिलता है, जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, अभी गोल्डन रूल में मैंने बताया आपको। तो डेफिनेशन अब कैसे बन जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल फैक्टर इनकम्स को ऐड कर रहे हैं विच हैव बीन अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग नेट। डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लेते तो हो जाता है ग्रॉस, डेप्रिसिएशन हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए हमको क्या मिल रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या हो गया डेफिनेशन, इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या हो गया, एनडीपीएफसी या नॉन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग डोमेस्टिक इनकम मीन्स टोटल इनकम। टोटल कौन सी इनकम, टोटल फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक इनकम में कभी भी नॉन फैक्टर इनकम नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी, फैक्टर इनकम। सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों इसको डोमेस्टिक इनकम बोल रहे हैं, बिकॉज दीज आर दोज फैक्टर इनकम्स विच आर बीइंग अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर इसको अर्न किया गया है। ओके, तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब यदि कोई भी इनकम दिया जाता है और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अ पर्टिकुलर इनकम इज़ गिवन एंड इट इज़ आस्क्ड दैट वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट, तो आपको देखना पड़ेगा वेदर दैट इनकम हैज़ बीन अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नॉट। if that income has been earned within the domestic territory of India, will be included in domestic income of India. For example, suppose an American is working in India and he's getting a salary of 10,000 rupees per month, whether this amount of money will be included in domestic income of India or America. So this will be included in domestic income of India because that American, in spite of being American, that person is working within the domestic territory of India. So in case of domestic territory, who is earning the factor income, it doesn't matter. What matters, where the income is being earned. So that income is being earned by that American, but within domestic territory of India, that is why it will be included in domestic income of India. Second example, suppose an Indian is working in America and he is earning 50,000 rupees per month salary in America. Will that income earned by that Indian working in America will be included in domestic income of India? No, because that person is an Indian, there is no doubt, but he is not working within the domestic territory of India. He is working outside the domestic territory of India, and in the domestic income of India, only those incomes will be included which are earned within the domestic territory of India. So that income earned by Indian working in America will not be included in domestic income of India because he is working outside of India. Same question may be asked in case of production also. Suppose a product is being produced in India by an American, will it be included? In spite of being produced by an American, that product will be included in domestic income, GDP of India, because that product is being produced within the domestic territory of India. Suppose an Indian is working in America and he's producing some product in America. In spite of being produced by an Indian,
that product will not be included in GDP of India because that product is being produced outside the domestic territory. तो जब भी GDP का कॉन्सेप्ट आएगा या डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें डोमेस्टिक लगा रहेगा, तो उस केस में वही आइटम्स इंक्लूड होंगे जिनका प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो रहा है. इसमें ये मैटर नहीं कर रहा है कि उसे इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या अमेरिकन, ये आपको नहीं देखना है. यू हैव टू सी ओनली दिस थिंग दैट वेयर दैट प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड और दैट इनकम इज बीइंग जनरेटेड. If that item is related to domestic territory of India, will be included. If it is not related, will not be included. Is this clear? अब इसी GDP से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है GNP. GNP को भी वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे डिफाइन करा था GDP को. थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. GDP डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड होता है, GNP नेशनल रेजिडेंट से रिलेटेड होता है. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. जब एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के जो नेशनल रेजिडेंट्स होते हैं उन लोगों ने सारे रेजिडेंट्स ने मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसकी मार्केट वैल्यू को एक साथ ऐड कर देते हैं तो हमको GNP पता चल जाता है. और इसको GNP को GNP MP भी बोलते हैं, GNP एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला GNP हम निकालने के लिए वी आर एडिंग द मार्केट प्राइसेस means market values of goods and services. So market values means market prices. So since we are adding market values, that is why this GNP will be known as GNP at market price. Is this clear? Now suppose GNP किसी भी कंट्री का है 400 करोड़ रुपीज़ का, रुपीज़ 400 करोड़ means market value of all goods and services which have been produced by the national residents is of 400 crore rupees. Now this will be sold, these goods will be sold in market and producers will receive 400 crore rupees. Now this 400 crore rupees obviously we know that will be paid to various factors of production in form of rent, wage, royalty, plus salary, plus profit, plus interest. ये फैक्टर इनकम्स के फॉर्म में इस अमाउंट ऑफ मनी को पे किया जाएगा. किनको पे किया जाएगा? जो रेजिडेंट्स हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन किसने किया? नेशनल रेजिडेंट्स ने. तो दिस 400 रुपीज़ विल बी पेड इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी एक्सेट्रा टू ऑल दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हु आर द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. क्योंकि नेशनल रेजिडेंट्स ने प्रोडक्शन करा है उनको फैक्टर इनकम के फॉर्म में पे कर दिया जाएगा. और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ दिस 400 रुपीज़ विल बी स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ दोज मशीन्स which have got some wear and tear. Suppose 20 करोड़ रुपीज़ इस पे खर्च होता है wear and tear पे, तो 20 करोड़ क्या हो जाएगा? depreciation. means out of 400 crore rupees 20 crore rupees will be spent on depreciation and remaining 380 crore rupees will be paid among various factors of production who are the residents, national residents of the country. तो इस तरह से हम factor incomes अर्नड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 400 के. और 400 किसके इक्वल है? GDP के. लेकिन ये वाला GDP हम कैसे निकल रहा है? नॉट बाय एडिंग द मार्केट वैल्यूज. दिस GDP वी आर गेटिंग बाय एडिंग द फैक्टर इनकम्स. और फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इनकम है, और जो भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए फैक्टर कॉस्ट है. इसलिए इस तरह से जब हम फैक्टर इनकम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं GNP FC. इस तरह से जब भी हम फैक्टर इनकम्स और डेप्रिसिएशन को ऐड करके GNP निकालते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं? सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. जब हम कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है GNP FC. जैसे GDP FC मिला था बाई एडिंग द फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स. इसमें नेशनल रेजिडेंट्स इंपॉर्टेंट है. तो ये पहले हम ये GDP GNP MP की बात कर लेते हैं. ग्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी आर डूइंग सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. तो ग्रॉस हो गया. नेशनल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स. तो यहाँ से नेशनल आ गया और P मतलब प्रोडक्ट, तो इसीलिए इसको GNP बोलते हैं. तो यहाँ पे GNP हम कैसे निकाल रहे हैं? इफ़ वी आर एडिंग ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और उसमें इंक्लूड कर ले रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है? GNP के इक्वल हमको मिल जा रहा है अमाउंट. लेकिन ये GNP हम फैक्टर इनकम्स ऐड करके निकाल रहे हैं, इसीलिए इस GNP को बोलते हैं GNP FC.
ओके तो इसमें फैक्टर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो ये ग्रॉस बन गया है। और अभी मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल में कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट, मतलब इसमें से यदि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, माइनस डेप्रिसिएशन कर दें, तो ये ग्रॉस क्या बन जाएगा, दिस ग्रॉस विल बी कन्वर्टेड एज नेट, और रिमेनिंग टर्म्स वैसे ही रहेंगे, नेट ना एन पी एफ सी, पहले क्या था जी एन पी एफ सी, तो ग्रॉस था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो अब क्या बन गया नेट, और उसके आगे क्या है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें से डेप्रिसिएशन यदि हटा दें, मतलब इसको हटा दें, केवल हम क्या करें, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो हमको ये टर्म मिल जाता है, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और यही एनएनपीएफसी होता है नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं आप समझ ही गए होंगे। नेशनल इनकम का मतलब, नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम से इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो नेशनल इनकम मीन्स टोटल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नेशनल रेजिडेंट्स, ऐसे फैक्टर इनकम्स जिसे नेशनल रेजिडेंट्स ने अर्न किया हो उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, और ऐसे फैक्टर इनकम्स जिनको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया गया हो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ओके तो ये नेशनल इनकम हो गया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना पड़ेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एन एन पी एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है एन डी पी एफ सी, एन डी पी एफ सी का मतलब हो गया डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब ये जो नेशनल वाले कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी, चाहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम, इन केसेस में नेशनल रेजिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में क्या होता है, कुछ इनकम्स दिया जाता है और पूछा जाता है वेदर दीज इनकम्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट ऑफ अ कंट्री, या इंडिया के नेशनल इनकम में इनको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं। तो हमको देखना है कि हु इज़ अर्निंग दैट नेशनल इनकम। जब भी नेशनल इनकम की बात आएगी तो हम देखेंगे कौन अर्न कर रहा है, जब डोमेस्टिक इनकम की बात होगी तो हम देखेंगे कहाँ अर्न हो रहा है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक इनकम, प्लेस इज important. If income is being earned in India, will be included in domestic territory. If it is not being earned within India, will not be included. और जो नेशनल इनकम है इसमें प्लेस नहीं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल, दैट हु इज़ अर्निंग। आप क्वेश्चन पूछेंगे, कोई आइटम दिया गया है, पूछा जाता है वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और नॉट, तो यू विल आस्क दिस क्वेश्चन दैट हु इज़ अर्निंग दिस इनकम। इफ दैट इनकम इज बीइंग अर्नड बाय इंडियन रेजिडेंट, it will be included in the national income of India. If it is being earned by that person who is not the resident of India, then that income will not be included. For example, if suppose an American is working in India and he is earning a salary of 20,000 rupees per month, American is working in India, within India he is working, so domestic income में include किया जाएगा because that income is being earned within domestic territory of India. But India के national income में that will not be included because that income is not being earned by an Indian, that is being earned by the resident of an America, so it will not be included. Second example, suppose 20,000 रुपीज़ इज़ being earned by an Indian working in America. एक इंडियन है अमेरिका में वर्क कर रहा है, तो in spite of this fact that that person is working in America outside India, will be included in national income of India because that is being earned by an Indian person. But that will not be included in domestic income of India because that income is being earned by Indian but outside India. So domestic income में नहीं include होगा लेकिन national income में include होगा। तो ये सारे टर्म्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इन गोल्डन रूल्स को यूज़ कैसे किया जाता है, फार्मूला कैसे डेवलप किया जाता है, इन गोल्डन रूल्स को कैसे यूज़ करके हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे ये सारे जितने फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, ये दिस एंड दिस, ये सारे फार्मूले डिराइव करना होगा ऑन स्पॉट। आपको ये फार्मूले आप याद करके नहीं जा सकते, तुरंत आपको डिराइव करना होगा। जैसे 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिया है। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला टू फाइंड नेशनल इनकम इफ़ जीडीपी एमपी इज़ गिवन। जीडीपी एमपी दिया गया है और हमको नेशनल इनकम निकालना है, तो हमको पता है ये बात कि नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है NNPFC। नेशनल इनकम इज़ नोन एज NNPFC। ये हमको चाहिए।
और हमको दिया क्या गया है, व्हाट हैज़ बीन गिवन, मतलब NNP-FC वी रिक्वायर, ठीक। और हमको दिया क्या गया है, GDP-MP से NNP-FC हमको चाहिए। तो अब हमको देखना है कि सबसे पहले दोनों के कितने टर्म्स आए हैं, यहाँ पे NNP-FC और यहाँ पे GDP-FC, इनमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए, FC चाहिए, लेकिन यहाँ पे FC नहीं देके क्या दिया गया है, MP दिया गया है। तो FC का फार्मूला क्या होता है, गोल्डन रूल में मैंने MP का फार्मूला आपको बताया था, MP मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, FC चाहिए। तो FC क्या हो जाएगा, FC इक्वल्स टू हो जाएगा, FC इक्वल्स टू MP, और ये साइड चेंज होगा तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका साइड चेंज होगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब्सिडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो MP माइनस IT प्लस S। तो देखिए अब क्या हम GDP पे ध्यान ही नहीं देंगे, NNP पे ध्यान नहीं देंगे, अभी केवल किस पे ध्यान दे रहे हैं, FC हमको चाहिए। तो FC इक्वल्स टू MP, MP यहाँ पे है तो यहाँ पे MP इज ऑलरेडी गिवन, MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इतना हमने कन्वर्ट कर लिया। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोडक्ट, और यहाँ भी प्रोडक्ट, तो यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नेशनल, और यहाँ पे है डोमेस्टिक। ये पहला वाला N दिखाता है नेट और दूसरा वाला N दिखाता है नेशनल, तो यहाँ नेशनल इज गिवन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेशनल इज गिवन, और इसी के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया गया है, डोमेस्टिक। तो हमको नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक दिया गया है, तो नेशनल का फार्मूला हमको पता है, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। अभी मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था। तो क्या हो जाएगा, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक यहाँ ऑलरेडी इज गिवन, और प्लस NFIA यहाँ पे कर देंगे, प्लस NFIA। और लास्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, नेट। लास्ट थिंग इज नेट, हमको चाहिए क्या दिया गया है, ग्रॉस। तो नेट कैसे निकलेगा, हमने अभी बताया था कि नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट इक्वल्स टू हो गया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से फार्मूला क्या डेवलप हो गया, फार्मूला कैसे डेवलप हो गया, NNP-FC इक्वल्स टू GDP-MP माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन। इस तरह से फार्मूला डेवलप हुआ। इसको मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कैसे इसको करा गया है। सपोज GDP-MP इज गिवन एज सपोज 200, और पूछा जाता है कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कितना है निकालिए। तो हमको पता है ना कि नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है NNP-FC। तो NNP-FC हमको चाहिए, फार्मूला बनाना है, लेकिन दिया क्या गया है, GDP-MP, ठीक है। तो यहाँ पे FC चाहिए और यहाँ पे इसके जगह पे क्या दिया गया है, MP दिया गया है। तो FC का फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि MP इक्वल्स टू, वी नो दैट MP इक्वल्स टू FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इट इम्प्लाइज दैट FC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MP माइनस IT प्लस सब्सिडी। तो FC इक्वल्स टू MP माइनस IT प्लस सब्सिडी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड, सॉरी FC के लेफ्ट में क्या है, प्रोडक्ट, यहाँ MP के लेफ्ट में क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट के लेफ्ट में यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ प्रोडक्ट के लेफ्ट में है नेशनल। तो हमको पता है नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस होता है NFIA, गोल्डन रूल। और यहाँ पे नेट है, तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये फार्मूला हो जाएगा NNP-FC इक्वल्स टू GDP-MP माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन। इस तरह से फार्मूले को डेवलप किया गया है। एक और यूज़ देख लेते हैं गोल्डन रूल का, अनदर यूज़ ऑफ गोल्डन रूल, derivation of formula to find out domestic income from GNP-MP. Suppose GNP-MP is given and we want to find out domestic income. Domestic income का दूसरा नाम होता है NDP-FC। तो फिर से हमको क्या रिक्वायर्ड है, FC चाहिए। यहाँ पे हम कंपैरिजन दोनों का करना स्टार्ट करते हैं राइट मोस्ट से। तो सबसे राइट में क्या दिया गया है, FC हमको चाहिए, दिया गया है MP। तो हमको पता है FC इक्वल्स टू MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, गोल्डन रूल है। और FC के लेफ्ट में क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ भी प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं। इसके लेफ्ट में क्या है, यहाँ नेशनल, यहाँ डोमेस्टिक। तो हमको पता है ना कि नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, ये डोमेस्टिक है।
तो साइड चेंज कर देंगे तो डोमेस्टिक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इक्वल्स टू नेशनल माइनस NFIA। तो डोमेस्टिक इक्वल्स टू नेशनल माइनस NFIA, और यहाँ पे क्या है ग्रॉस, और यहाँ दिया है नेट, तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये फार्मूला हमने यहाँ डिराइव किया। या यदि डेरिवेशन करना हो, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला टू फाइंड आउट GDP MP इफ नेशनल इनकम इज गिवन, ये डेरिवेशन आपको खुद से करना है, इट इज़ योर होमवर्क। एंड डेरिवेशन ऑफ फार्मूला टू फाइंड आउट GNP MP इफ डोमेस्टिक इनकम इज गिवन, ये दोनों डेरिवेशंस को करके आप देख लेंगे। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। फाइंड आउट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। एक डेटा है जिसमें दिया गया आइटम्स, GDP MP इज 500 crore rupees, depreciation 40 crore rupees, indirect tax 20 crore rupees, subsidy 10 crore rupees, NFIA 5 crore rupees, and we have to find out national income। तो हमको फार्मूला पता है कि अभी मैंने डिराइव कराया था, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPFC, यही तो बोलते हैं NNPFC। ओके, और क्या दिया गया है हमको, GDP MP, तो वी रिक्वायर FC। तो FC इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि MP इक्वल्स टू होता है FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो साइड चेंज करेंगे तो FC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MP इज ऑलरेडी गिवन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट नो चेंज, यहाँ पे है नेशनल, यहाँ पे है डोमेस्टिक, तो नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस हो जाएगा NFIA, और यहाँ पे नेट, और यहाँ पे है ग्रॉस, तो नेट इक्वल्स टू, यहाँ पे है नेट इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, ग्रॉस इज ऑलरेडी गिवन माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दिया, GDP MP माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन, GDP MP इज आइटम नंबर 1, तो यहाँ लिखा है आइटम नंबर 1, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इज आइटम नंबर 3, तो यहाँ आइटम नंबर 3 लिखा है, प्लस सब्सिडी, सब्सिडी इज आइटम नंबर 4, प्लस NFIA, NFIA इज आइटम नंबर 5, माइनस डेप्रिसिएशन इज आइटम नंबर 2, तो सबकी वैल्यू पुट किया, 500 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 40 इक्वल्स टू 455 करोड़ रुपीज़। इज इज क्लियर। अब दूसरा हमको डोमेस्टिक इनकम चाहिए। डोमेस्टिक इनकम का फार्मूला हमको पता है, डोमेस्टिक इनकम इज नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये अभी मैंने आपको बताया। NDPFC, और किससे हमको कन्वर्ट करना है इसको, GDP MP इज गिवन, GDP MP इज गिवन। अब हमको फार्मूला डेवलप करना है इसका, मतलब हमको दिस वन इक्वल्स टू चाहिए, तो दिस वन में क्या आ रहा है FC, FC इक्वल्स टू यहाँ पे ऑलरेडी दिया है फार्मूले में, हमको पता है FC इक्वल्स टू MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नो चेंज, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ भी डोमेस्टिक है तो नो चेंज, यहाँ भी डोमेस्टिक आ गया, यहाँ भी डोमेस्टिक नो चेंज, यहाँ नेट है और यहाँ ग्रॉस है, तो नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो फार्मूला क्या हो गया, GDP MP माइनस IT प्लस S माइनस डेप्रिसिएशन, तो आइटम नंबर 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, 500 माइनस 20 प्लस 10 माइनस 40 इक्वल्स टू 450 करोड़ रुपीज़। इस तरह से आप डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकाल सकते हैं if GDP MP is given with the help of golden rules. So this is all about today. Thank you.